अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। के इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, हमारे बहुत बड़े सपोर्टिव हैं। सर आपका भी अभिनंदन। हमारे टूर्नामेंट डायरेक्टर श्री विक्रम सिंह सर, जिनका बहुत सपोर्ट रहा है। चेस का जो प्रमोशन आप देख रहे हैं, जहाँ भी चेस का इवेंट हम ऑर्गेनाइज करते हैं, सर के सपोर्ट से ही होता है। तो सर के लिए भी एक बार जोरदार ताली। हमारे साथ हैं हमारे वाइस प्रेसिडेंट श्री तनवीर सिंह सर, सर आपका भी अभिनंदन। हमारे इस इवेंट के चीफ ऑर्बिटर श्री एच दिनेश सर, सर आपका भी अभिनंदन है। हमारे साथ ट्रेनिंग ऑफिसर हैं भास्कर सर, सर वेलकम सर। डीवाईएसपी अजय राय सर हमारे साथ हैं, सर आपका भी अभिनंदन है। अब मैं हमारे डायरेक्टर एजुकेशन सर से निवेदन करूंगी, सर फूलों का गुलदस्ता डीजीपी सर को देकर उनका अभिवादन करें। तालियां जोर से बजनी चाहिए। अब मैं तनवीर सर से निवेदन करूंगी, सर आप भावेश सर का स्वागत करें। मैं हमारे नेताजी सर से रिक्वेस्ट करती हूँ कि डायरेक्टर सर को फूलों का गुलदस्ता देकर उनका अभिवादन करें। अब मैं हमारे तनवीर सर से रिक्वेस्ट करूंगी, सर वेलकम एड्रेस दें आज के इस वैल्यूटरी फंक्शन का। My dear distinguished guests on the dais, esteemed players, we welcome you to the beautiful land of Andaman and Nicobar Islands. I would like to express my gratitude for your presence, respected HGS Dalwar sir, who is the Director General of Andaman and Nicobar Police. And also we would like to make a special mention that sir has been awarded with the President's Medal very recently. So congratulations on the same. We would like to welcome Vikram sir, who is our Director Sports and Education, and without him and his help, Bhavesh sir from AICF, who is a very important person in the All India Chess Federation, who helps coordinate all the events and has been a key person in promoting chess in India. We welcome our arbiters Dinesh sir and Bhaskar sir, and on the dais Ajay Rai sir for gracing this occasion. Today, as we celebrate the success of this international tournament, I hope all you winners and participants will take back good memories and cherish these memories of Andaman Islands. Today, it's because of ANCA that we have completed a milestone of having an international event in Andaman and Nicobar Island. And I wholeheartedly thank all the international players who have flown from miles and miles away to Andaman Islands to participate in this event. We appreciate your passion and dedication to the sport of chess. So let's not just celebrate the winners, celebrate the tournament, but also the passion and dedication of all esteemed players for chess. Today, it's ANCA's role, Andaman Nicobar Chess Association, which has helped groom young talent and nurtured them in the Andaman. And thus, we see not a national event, which we have already done, by the way, and it was big in numbers,
And finally, we see the closing of a successful international FIDE-rated chess tournament today. So I thank one and all for coming down to Andaman. Hope you take back good memories. We look forward to having better and bigger events in the future. Thank you one and all, everyone present here. Thank you again. Thank you, sir. The event was started on 23rd of August and concluded on today, 28th August. We have with us our pairing officer. He will be going to present the arbiter report. Bhaskar sir, as he is the first coach of D. Gukesh, who is the world champion. Thank you. Honorable dignitaries on the dais, respected players, parents, and other officials, arbiters, and volunteers. I'm here to present you the tournament report of first Andaman Nicobar International Open FIDE-rated chess tournament. It started on 23rd of August, and today it is concluding. Tournament held with 9 rounds with a time control of 90 minutes plus 30 seconds increment from move number 1. We had 351 participants, 1 player from USA, 2 players from Sri Lanka, and 1 from Nepal. So according to that, 4 federations happened. So I congratulate Andaman for having 4 federations. Total cash prize for the tournament was 7 lakhs. At the end of 9th round, Arush A of Kerala stood first, followed by Prashant J. Nayak of Karnataka. Singh Kumar of Bihar completed the podium. Andaman Chess Association has grown a lot and they have conducted such a wonderful tournament with an international level standard. I wish them all the best and ask them to conduct lots of tournaments so that we can help players. Even in future they can conduct Grandmaster tournaments. Of course they have promised. So most players can come here for the next time. I thank my team of arbiters and volunteers who worked round the clock for the success of this tournament. Thank you all. In this event, we have 4 federations including India. So I would like to invite player from Sri Lanka to give a feedback. Actually, I was very thankful for inviting me for this Andaman and Nicobar International Tournament. So for the organizing committee, I am very thankful for that. And I have like 6 days in Andaman. It's very nice. The way you are, it means like it's for me. It's like a wow. So and I'm congratulations for the Andaman and Nicobar Chess Association for your future also. Thank you. Thank you, sir. एंड हमारे साथ इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा सर भी हैं, तो मैं चाहूँगी कि सर आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें. ये उनका पहला विजिट है हमारे इस आइलैंड में. ये जो है हमारे आज के जो इस इवेंट के टॉप सीडेड प्लेयर इंटरनेशनल मास्टर दिनेश शर्मा सर हैं, तो उनके लिए जोरदार तालियां. आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय, मंच में बैठे सभी सम्मानित व्यक्तिगण, बच्चों, सभी चेस प्लेयर्स, पेरेंट्स और मीडिया के साथियों, सबसे पहले मैं अंडमान एंड निकोबार चेस एसोसिएशन को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे से इस टूर्नामेंट को मैनेज किया. 350 खिलाड़ियों को मैनेज करना बहुत आसान नहीं था. इसमें आपकी आर्बिटर की टीम ने भी बहुत अच्छा रोल किया और पेरेंट्स को भी मैं बधाई देना चाहता हूँ जो इतनी गर्मी में 8 घंटे बाहर बैठे रहे. बहुत आसान नहीं था पेरेंट्स के लिए भी. मुझे उम्मीद है आप आगे भी फ्यूचर में अच्छे टूर्नामेंट कराते रहेंगे. इस टूर्नामेंट में मैंने एक चीज़ गौर की, यहाँ के जो खिलाड़ी हैं लोकल, शुरू के 6 मैचेस में पीछे की 5 रो बहुत जल्दी खाली हो जाती थी,
लेकिन धीरे धीरे एक्सपीरियंस होकर मैंने देखा रेस्ट डे के बाद सभी मैचेस जो है 1 घंटे की जगह 2-2 घंटे सब लोगों ने फाइट की। तो ये इम्प्रूवमेंट मुझे यहाँ के खिलाड़ियों में दिखा। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे आप लोग लोकल टूर्नामेंट खेले और आपस में भी प्रैक्टिस मैसेज खेलिए ताकि आगे आने वाले सालों में आप और अच्छा कर सकें और अंडमान एंड निकोबार का नाम आगे बढ़ाएं और देश का भी नाम आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। और कोई जो अपना फीडबैक देना चाहता है वो आ जाए। बच्चे के लिए जोरदार तालियां। Good evening. My name is Barnavo Biswas. I am from Kolkata. In this tournament, I enjoyed a lot. मैं अदिति श्रीवास्तव फ्रॉम मध्य प्रदेश। मैं एक चेस कोच भी हूँ और एक ऑर्बिटर भी हूँ एंड मेरे डैड ऑर्गेनाइजर भी हैं। तो आई नो कि ऑर्गेनाइज एक इवेंट को, इतने बड़ी इवेंट को ऑर्गेनाइज करना इज़ वेरी टफ, बट डिस्पाइट ऑल ऑर्गेनाइजिंग टीम जो एसोसिएशन है यहाँ की, इन्हें काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया। हमारे ट्रांसपोर्ट से लेके एकोमोडेशन से लेके प्लेइंग हॉल तक। सो इट वॉज वेरी इंजॉयबल। थैंक यू सो मच। भाभी सर से आपने पहले भी मुलाकात की है, वो हमारे जो पहले राउंड थे उसमें आए थे। भाभी सर जो है वो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन की इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर हैं, एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो इन्होंने बहुत सारे रोल प्ले किए हैं। सर आप 2 शब्द कहिए। विराजमान अतिथि विशेष, खिलाड़ी मित्रों, पेरेंट्स, एक बार जोरदार अंडमान निकोबार एसोसिएशन के लिए जोरदार तालियां से, क्योंकि ये इतनी बड़ी इवेंट आपके लिए की है और सभी फैसिलिटी मैंने पेरेंट्स को भी मिला। तो ये इवेंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, लेकिन जो अंडमान निकोबार एसोसिएशन और यहाँ के डायरेक्टर स्पोर्ट और जो मदद कर रहे हैं, यानी कि ये आपने देखा जो बाहर से खिलाड़ी आए हैं कि अंडमान निकोबार के खिलाड़ी आपके साथ खेलते हैं। ये जो सर ने बताया आइए कि भाई वो पहले 5, 10, 15 मिनट में गेम खत्म करते थे। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ये गेम कैसे खेला जाता है, नेशनल कैसे खेला जाता है। तो ये जो टूर्नामेंट खेलने की अपॉर्चुनिटी आपको दी है, तो ऐसे सर जोरदार तालियां के, जिसकी वजह से आप अपने घर से, स्कूल से यहाँ तक पहुँचे हैं। अभी आपको खाली मंजिल हासिल करना है, नेशनल में नंबर लाके आपका एसोसिएशन का नाम बढ़ाना है। तो आपके लिए भी एक बार जोरदार तालियां कि भी आप चेस के साथ जुड़े हैं और जुड़ते रहे और आगे बढ़ते रहे। और ये मैं एसोसिएशन को भी बोलता हूँ कि ऐसी टूर्नामेंट हर वक्त आप करते रहिए, यानी कि महीने में 2 महीने में ऐसे टूर्नामेंट करेंगे तो जरूर अंडमान निकोबार का एसोसिएशन के जो नेशनल के अंदर नंबर आएगा और बच्चे अपने आप IM GM बनेंगे। और इंडिया के अंदर जो इतने बड़े अपने आपने देखा वर्ल्ड चैंपियन इंडिया का, पूरी इंडिया की टीम तो कि इंडिया की, उसमें आपका नाम जुड़े और आप सब लोग एसोसिएशन का और गुजरात अंडमान निकोबार का, मैं गुजरात का हूँ तो मेरे मुंह से गुजरात का नाम निकल ही जाता है। तो ऐसे ही आप अंडमान निकोबार का नाम रोशन करें। थैंक यू वेरी मच। जो अंडमान निकोबार पुलिस है, मैं बताना चाहूँगी कि वो लोग हमेशा से वेरियस स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें क्रिकेट है, फुटबॉल है, चेस भी है। DGP कप की ओर से लास्ट ईयर भी हमने चेस टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया था पुलिस लाइन के ड्रिल हॉल में। बहुत अच्छा इवेंट था और बहुत सक्सेसफुल इवेंट था। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू कंडक्ट सच टाइप ऑफ टूर्नामेंट्स। मैं निवेदन करूँगी हमारे DGP सर से कि वो आए और हमारे जो प्लेयर्स हैं उनको आशीर्वाद दें। Officials of the chess administrations और especially I would say parents, जिनकी contribution I always feel कि बच्चों से भी ज़्यादा रहती है। सिर्फ खेलना छोड़ के बाकी सब कुछ पेरेंट्स करते हैं। और
all the young players. मैं हैरान था कि अंडर 7 भी बच्चे यहाँ इस टूर्नामेंट में खेले हैं and our members from the media team. नॉर्मली मैं ज़्यादा फंक्शंस में जाता नहीं हूँ बट जब मुझे पता चला कि ये पहला ही बार अंडमान में फेडरेटेड टूर्नामेंट हो रहा है और इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है और इतना सक्सेसफुली इसको आयोजित किया गया है, तो आई थॉट इट इज़ आवर ड्यूटी टू एनकरेज इन व्हाटएवर वे वी कैन. मैं खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, मेरा बेटा भी इंटरनेशनली कम्पीट करता है, तो आई नो इट इज़ वेरी वेरी टफ, वेरी चैलेंजिंग. और अंडमान वैसे भी रिमोट लोकेशन है और ख़ासतौर पे जो इंटरनेशनल प्लेयर्स आए हैं दूर से चल के, तो लॉट ऑफ क्रेडिट टू देम एंड ऑल्सो टू द ऑर्गेनाइजर्स एंड स्पेशली विक्रम एज डायरेक्टर स्पोर्ट्स हैज बीन पुटिंग इन लॉट ऑफ एफर्ट्स. इन्होंने जो स्कूलों में भी चेस को सिलेबस के साथ इंटीग्रेट करके आगे जो किया है, आई थिंक अंडमान विल डू वेरी वेल इन फ्यूचर ऑल्सो. मिस्टर भावेश पटेल मुझे बता रहे थे कि 50,000 बच्चों में से लास्ट 3 साल में 1200 बच्चे जो हैं वो रजिस्ट्रेशन जो है फेडरेटिंग में वो अंडमान के बच्चों की है. तो दिस इज अ ह्यूज नंबर. अगर देखा जाए तो 2.4% बनता है और जबकि पॉपुलेशन वाइज अंडमान की पॉपुलेशन तो इवन 0.024% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन भी नहीं होगी. तो आई थिंक इट इज़ अमेजिंग सक्सेस स्टोरी. और ये एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ऑनलाइन भी आजकल chess.com पे मुझे पता लोग खेलते रहते हैं और भी बड़ी सारी साइट्स हैं, तो बहुत कम हैंडीकैप है अगर आप रिमोट भी हैं. और ये एक अच्छी गेम है, नॉट ओनली डज डेवलपमेंटली बट ऑल्सो जो अक्सर चैलेंज होता है रिमोटनेस ऑफ लोकेशन का या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, वो हैंडीकैप इसमें बहुत कम है. एंड आई थिंक जो एक चीज़ कमी थी वो अच्छे टूर्नामेंट की थी, और इस साल ये जो फेडरेटेड टूर्नामेंट हुआ है इससे ये कमी भी आगे नहीं रहेगी. और जो बच्चों का एक्सपोजर हुआ है, जैसा कि बता रहे थे कि पहले दिन 1 घंटा मैच चल रहा था, दूसरे दिन 2 घंटे पहुंच गया, तो आई एम श्योर वेरी सून वी विल सी ग्रैंड मास्टर एंड क्लास प्लेयर्स कमिंग आउट फ्रॉम अंडमान. ऑलरेडी इंडियंस वर्ल्ड के टॉप में यू नो डी गुकेश हो चाहे दूसरे प्रज्ञानंदा और वेरियस अदर प्लेयर्स, दे आर ऑलरेडी मेकिंग ह्यूज मार्क. तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि वेरी सून वी विल सी प्लेयर फ्रॉम अंडमान शाइनिंग एट अ वर्ल्ड स्टेज. This, I will once again compliment all the organizers for a great tournament hosted with huge success, and all the players who have put in so much effort. Wish you a very bright future in chess. Thank you. पहले अनाउंस करेंगे. 5th position in the open category goes to Bhosle Sriraj from Karnataka. 35,000 cash prize, 5,000 a trophy and a certificate. Arul Anand SVK, they played very well और इनके खेल से हमारे बच्चों को बहुत सीखने के लिए मिला. 40,000 a certificate and a trophy. Second runner-up of this tournament is Sinan Sujit and a trophy. जोरदार तालियां. सर ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया. हमारे इस इवेंट में पूरे इंडिया से सारे स्टेट से लोग आए थे. 70,000
trophy and a certificate. तालियां बजनी चाहिए. These are youngest, under 13 category players. 1 lakh rupee, a trophy and a certificate. A big round of applause to Arush. Arush played very well. बहुत बढ़िया खेला इसने. जोरदार तालियां बजनी चाहिए आरुष के लिए. Arush is an inspiration to all the players. Tanish Raghavan, a big round of applause to Tanish Raghavan. जितने भी प्लेयर्स हैं, पीटर आनंद है. नाइन्थ पोजीशन के दिनेश शर्मा. तालियां बजनी चाहिए. तालियों में कंजूसी नहीं. श्रीवास्तव कुशाग्रा फ्रॉम मध्य प्रदेश. Position 11th position Srivastava Kushagra from Madhya Pradesh. 12th position Sarsha Becker from Kerala. 13th position Ashish Chaudhary. 14th position Abhishek TM from Kerala. 16th position Krishai Jain from West Bengal. Kritika B from Telangana. 18th position Soumyajit Das. तालियां बजनी नहीं है. बच्चों को इंस्पिरेशन कैसे मिलेगा? उन्होंने इतनी मेहनत की है. 19th position Gopalakrishna Maheshwari from Uttar Pradesh, 7,000 rupees. 20th position Siddharth Mohan from Kerala. 21st position goes to Safaria Ghosh. Karan Jayati from Kerala. 22nd position goes to Karan Jayati from Kerala. Sumit Kumar MS from Karnataka. 23rd position Sumit Kumar. 24th position goes to Sandeep Santosh from Kerala. Sandeep Santosh from Kerala. 6,000 rupees. And 25th position goes to Adharva PT from Tamil Nadu. Adharva. Top 25 prizes are over. Now the category prizes. Third position goes to Manna Chiranjeev. Third position goes to for boys and Ritvik from Andaman Nicobar Island. A trophy. And Ritvik. Second position goes to Numan Siddiq with 3,000 plus trophy. Numan. And first position goes to Kavya Chakravarti from Odisha. Vedant R from Andaman Nicobar Island, a trophy. Second position goes to Saw Jensen Samuel, 3,000 plus trophy. First position goes to Jai Kishan alias P. Joshi. He is also from Andaman Nicobar Island. All three prizes goes to Andaman Nicobar Island. Category boys. Third position goes to Ornish T from Tamil Nadu. Ornish के लिए बहुत दूर से आए हैं वो.
position goes to Pranav Ganesh Prabhu from Tamil Nadu. Under 30, 3,500 plus trophy. अब हमारी बेटियों की बारी है. Under 7, third position Aradhya Godda from Andaman Nicobar Island. Second position Ratpata Aradhya Reddy from Telangana. S. Rudrani, first position S. Rudrani, again from Andaman Nicobar Island. Under 9 category, third position goes to Nikshita Biswas. Third trophy, 3,000 plus trophy. First position goes to Nakshatra Guptawari from Karnataka. Nakshatra. Category Vanshika Rao P from Andaman Nicobar Island. Our trophy. And first position Andaman Nicobar 3,500 plus trophy. All the 3 prizes goes to Andaman Nicobar Island. हमारे बच्चे भी किसी Under 13 category for girls. Sahana Jain from Tamil Nadu, third position, her trophy. Sahana Jain. Tika M from Puducherry, second position. From Puducherry. First position goes to G. Morning from Meghalaya. Jai Nikyam, G. Morning. 3,500 plus trophy. Vishal Khanna, 3,000 plus trophy. Best female category goes to Kavita PL from Tamil Nadu. Abhi round of applause for Kavita. Veteran category goes to Vishwanathan PL from Kerala. Vishwanathan PL. Best veteran. A big round of applause for him. 3,000 plus trophy. Goes to Sachit Bara from Andaman Nicobar Island. 9,500. Sachit Bara. Below 1,500. Second position goes to Sanjana G from Tamil Nadu. 11,000. Cash prize. Tejas Tiwari from Uttarakhand is first position. First position goes to Tejas Tiwari from Uttarakhand. Below 1,500 category. Below 1,600 and 500. Anil R from Andaman Nicobar Island. Below 1,600. Second position goes to Anto Amla Jain from Tamil Nadu. 11,000. Position goes to Lalit B from Andaman Nicobar Island. 12,000. Secretary from Kerala Chess Association Vishwanath sir, please आप स्टेज पे आ जाइए. First position. Below 1,700. Third position goes to Lokanda Rishikesh from Maharashtra. 9,500. Second position Dhani Deepak from Nepal. 11,000. Second position Dhani Deepak from Nepal. Dhani Deepak from Nepal. Treasure Meghalaya से जो treasure आए सर आप आ जाए. First position goes to Silsai and Mara from Meghalaya. सर treasurer का मेघालय के
participation kit. Below 1800 goes to and first position goes to Alia Ayush Umesh. Biju sir, आप स्टेज पे आ जाए. Alia Ayush Umesh, Maharashtra, first position. 12,000. हमारे जो फॉरेन प्लेयर्स थे उनके लिए हमने मोमेंटोस हमारी तरफ से हम दे रहे हैं ताकि उन्हें हमेशा अंडमान की याद आती रहे और जब भी टूर्नामेंट हो तो वो अंडमान आते रहे. तो प्लेयर फ्रॉम श्रीलंका, a small token of love from the entire Elko family. जोरदार तालियां श्रीलंका प्लेयर के लिए. प्लेयर फ्रॉम नेपाल, दीपक के लिए जोरदार तालियां. हमारे बीच एक ही इंटरनेशनल मास्टर है दिनेश शर्मा सर, आप स्टेज पे आ जाए. It's a token of love from the entire Elko family. Tanveer sir, Vice President of Andaman Nicobar Chess Association is presenting. ये फर्स्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के अंदर 350 बच्चे आए और 3 फेडरेशन यानी नेपाल, फिर यूए और श्रीलंका से और गुजरात इंडिया से, ऐसे 4 फेडरेशन से ये इंटरनेशनल टूर्नामेंट अंडमान निकोबार टूर्नामेंट ख़त्म हुई और बढ़िया व्यवस्था की थी अंडमान निकोबार एसोसिएशन ने प्लेयर के लिए. तो बढ़िया व्यवस्था थी, ऐसी अकोमोडेशन सब कुछ, और पेरेंट्स के लिए भी खास करके उन्होंने व्यवस्था की थी और चाय कॉफ़ी ये पूरा सिस्टम से किया था. यानी ये टूर्नामेंट नेशनल को भी टक्कर मारे ऐसी टूर्नामेंट किया था और बहुत बहुत सक्सेसफुली ये टूर्नामेंट किया अंडमान निकोबार ने. उसकी वजह से मैं ऑल इंडिया की ओर से अंडमान निकोबार को धन्यवाद देता हूँ और ऐसे नहीं ऐसी टूर्नामेंटें बढ़िया करते रहे और थैंक यू वेरी मच. मैं सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, सारे पेरेंट्स, पार्टिसिपेंट्स जो टाइम निकाल के इंटरनेशनल फेडरेटेड टूर्नामेंट में आए, जो कि फर्स्ट इन टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हो रहा है. एडमिनिस्ट्रेशन का काफ़ी सहयोग रहा, हमारी अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन का काफ़ी सहयोग रहा कि हम सक्सेसफुली ये इवेंट 350 प्लेयर, नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर एंड कश्मीर से कन्याकुमारी तक 22 स्टेट से प्लेयर पार्टिसिपेशन रही. तो एक बहुत ही सक्सेसफुल इवेंट रहा. पिछली बार हमने नेशनल कराया था, ये बार इंटरनेशनल इवेंट हुआ है. तो एक नया माइलस्टोन वापस अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने अचीव किया है. तो मैं आप लोग सबके सपोर्ट का, पेरेंट्स के धन्यवाद करना चाहूँगा. और आज हमने सिर्फ विनर्स के सक्सेस को ही सेलिब्रेट नहीं किया है, बट हर पार्टिसिपेंट के डेडिकेशन और पैशन को सेलिब्रेट किया है इस चेस के द्वारा. अंडमान में ये चेस टूर्नामेंट जो हुआ है ये पूरे देश में दिखाया जाएगा और ये सिर्फ एक चेस के लिए नहीं, स्पोर्ट ही नहीं, एक चेस टूरिज्म की भी शुरुआत है कि अंडमान भी ग्लोबल मैप में चेस के लिए है. और मैं आपको वापस से ये बताना चाहूँगा कि अंडमान जो हमारा यूटी है उसमें जो रेशियो ऑफ रजिस्टर्ड प्लेयर्स इज़ द हाईएस्ट इन इंडिया. तो 1200 प्लेयर्स आर रजिस्टर्ड आउट ऑफ 50,000 टोटल रजिस्टर्ड प्लेयर्स इन इंडिया. सो वी आर द हाईएस्ट एंड दिस हैज़ ओनली बीन पॉसिबल क्योंकि अंडमान निकोबार चेस एसोसिएशन ने लास्ट 10 साल में जितने कोचिंग कैंप्स, जितने टूर्नामेंट्स कराए हैं, उन्होंने चेस के गेम के लिए ग्रूम किया है. तो अगेन टू ऑल द प्लेयर्स एंड पेरेंट्स, थैंक यू फॉर कमिंग एंड पार्टिसिपेट. तो सर इस पर आपका टोटल लगभग 300 प्लेयर, तो क्या फ्यूचर में वैसे ज़्यादा अधिक प्लेयर भी आप करने की कुछ सोच रहे हैं? यस डेफिनेटली, जितना पब्लिसिटी होएगा उतने प्लेयर बढ़ते रहेंगे और आप देखोगे अधिकतर पार्टिसिपेशन अंडमान की भी थी. तो अगले साल आप देखोगे कोचिंग के बाद जो हम लोग एनका कोचिंग भी कराते हैं, तो कोचिंग के बाद और प्लेयर्स रजिस्टर्ड होंगे. ऐसे ही हम लोग हाईएस्ट इन द कंट्री एज पर पॉपुलेशन, ये आपका बढ़ता ही जाएगा क्योंकि एंका फुल जोर शोर से चेस करिकुलम चला रहा है, चेस कोचिंग चल रहा है और रिसेंटली एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने करिकुलम में भी चेस को ऐड कर दिया है और उनका ये भी सुविधा शायद प्रोवाइड करें, एंका बात कर रही है.
कि जो प्लेयर्स अफोर्ड नहीं कर सकते अपना रेटिंग खुलवाने के लिए, खैर उसकी फीस 300 रुपये है, तो वो भी प्रॉब्ली एनका या एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू हम लोग एक्सटेंड कराने की कोशिश करेंगे ताकि हमारे नंबर ऑफ प्लेयर्स बढ़ते हैं। थैंक यू। आपका स्वागत है इस क्लोजिंग सेरेमनी में। अंडमान एंड निकोबार इंटरनेशनल ओपन फेडरेटेड चेस टूर्नामेंट, जो कि ये पहली बार अंडमान निकोबार आइलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था, और ये टूर्नामेंट काफ़ी सक्सेसफुल रहा। इवन जितने भी हमारे पेरेंट्स बाहर से आए हैं, प्लेयर्स बाहर से आए हैं, बहुत ही अच्छा फीडबैक था और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था इस इवेंट के लिए। हम लोगों को एंट्रीज रिस्ट्रिक्ट करना पड़ा क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट बड़ा हॉल नहीं है सभी प्लेयर्स को एकोमोडेट करने के लिए। ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स मैंने बाहर से, इवन ये टूर्नामेंट खेलने के लिए रिकमेंडेशंस हमें आते थे बड़े बड़े लोगों से, बाहर स्टेट से, तो इससे पता चल रहा है कि ये इवेंट काफ़ी सक्सेसफुल है हुआ है। और चेस के लिए और अंडमान एज ए टूरिस्ट डेस्टिनेशन, इसके लिए भी सबके नज़र में है और यहाँ पे विज़िट करना चाहते हैं लोग। और एक चेस टूरिज़्म, चेस एज वेल एज यहाँ पे लोग आए डिफरेंट प्लेसेस में विज़िट करें, ऐसे कॉन्सेप्ट से हम लोग नेक्स्ट टाइम में कोशिश करेंगे, जिसमें टूर्नामेंट भी होगा, साथ ही साथ यहाँ पे लोकल प्लेसेस को विज़िट करने के लिए जो भी प्लेयर्स आते हैं उनको भी जो है हम लोग मौका देंगे। तो आपके माध्यम से मैं पूरे अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि हमारे CS सर, इन जितने भी पार्टिसिपेंट्स प्लेयर्स आए हैं, इन सभी के लिए जो है फ्री ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया। एक दिन का जो टूर था इनका, लोकल प्लेसेस विज़िट करना था, तो उसके लिए CS सर जो है इनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है यहाँ पे लोकल प्लेसेस विज़िट करने के लिए इनको ये अपॉर्चुनिटी दिया। और मैं CS सर और पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को जो है धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने ये सपोर्ट और उनका कंट्रीब्यूशन के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हम लोगों ने सोचा कि 300 के आसपास एंट्रीज को हम लोग रिस्ट्रिक्ट करना चाहते थे, लेकिन इतने एंट्रीज हमें कॉल आ रहे थे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जो अगर रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो ये मोर देन 650 एंट्रीज हो जाती। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे जैसे कि एक मल्टीपर्पज़ हॉल हो जाए, ताकि एक हॉल में कम से कम 1500 to 100 प्लेयर्स जो है एक ही साथ खेल सके, क्योंकि चेस, नॉट ओनली चेस, बाकी जितने भी अदर गेम्स हैं उसको भी जो है हम लोग एक शेड के अंदर, एक प्लेटफॉर्म के अंदर हम जो है उनको करा सकेंगे। तो ये मेरा रिक्वेस्ट है। और इसके लिए हमारे MP साहब भी हाल ही में हमें सपोर्ट करने की घोषणा की है, और MP लैड फंड से एक हॉल बनाने की जो पहल उन्होंने किया है, होपफुली एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट से वो भी संभव हो पाएगा। और मैं सभी को, जितने भी पार्टिसिपेंट्स इस टूर्नामेंट में भाग लिया, उन सबको जो है मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इसको सक्सेसफुली बनाने के लिए। और जितने भी आर्बिटर्स मेनलैंड से आए हैं इस इवेंट कंडक्ट करने के लिए, लाइक भास्कर, प्रशांत फ्रॉम गुजरात, जूली फ्रॉम महाराष्ट्र, आगम फ्रॉम अगेन सूरत, जितने भी आर्बिटर्स आए हैं मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये इवेंट को सक्सेसफुली यहाँ पे कंडक्ट किया। और हमारे लिए एक माइलस्टोन रहा ये, और हम आने वाले समय में एडमिनिस्ट्रेशन के सपोर्ट और जितने भी यहाँ पे हमारे लोकल स्पॉन्सर्स हैं, बिजनेस हाउसेस हैं, उनके सपोर्ट से एक GM लेवल के टूर्नामेंट भी हम लोग प्लान कर रहे हैं, और सबका सपोर्ट रहा तो वो भी यहाँ पे संभव होगा। थैंक यू।